Yes, good morning. Am I audible? Yes, Good ma'am. morning. Yes, ma'am. Good morning. Yes, so we get to, we had to start with functions of commercial banks. If you remember, we have done already. Um, we have started with financial institutions, if you remember. So on the PEX position, it was RBI. It is RBI. Okay. So we have done a little about RBI, its objectives. Okay. And we have done functions of RBI also. We had discussed, here it is written, it is in the chapter number 8, but we have already discussed. Okay. Commercial banks. So now what are commercial banks? You already know that. We discussed it that day. Now we have to start with functions of commercial banks. See, it's very simple. You have been doing this all the time. आप लोगों को पहले से भी ये पता है कि functions of commercial banks क्या होते हैं. यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है, देख लेते हैं. इन फंक्शंस को डिवाइड किया गया है इन टू पार्ट्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. आप सेकेंडरी को एजेंसी फंक्शंस भी कह सकते हैं. ठीक है. अब देखो प्राइमरी को अगेन टू पार्ट्स. फर्स्ट इज रिसीविंग डिपॉजिट्स एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स. what is the primary function, what is the basic main function of the commercial bank, without which it will not be able to survive in the market. Its main function, its main role is divided into two parts: receiving of deposits. मैम आपकी वॉइस बहुत धीरे आ रही है. अब आ रही है? अब ठीक है? यस मैम. हाँ जी. तो अब जो ये फंक्शंस दिए हुए हैं ना, इस फंक्शंस को इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है. पहला पार्ट है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन. प्राइमरी फंक्शन का मतलब होता है मेन फंक्शंस, जिसके बिना आप बैंक को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट में वो चल पाएगी. इट कैन नॉट रन इन द मार्केट विदाउट परफॉर्मिंग द मेन प्राइमरी फंक्शंस. Okay, but with the primary functions, they perform secondary functions as well. Now, primary functions are again divided into two parts: receiving deposits, granting loans, or you can say lending of funds. That is same as what I said is granting of loans. When you give somebody a loan, any amount of loan, that is known as lending of funds. Okay, so what do you mean by receiving of deposits? Receiving of deposits is again divided into two parts: time liabilities and demand liabilities. What is time liability? Can anybody tell me what is time and demand liability? I'm not asking about the examples. I'm asking about the meaning of time and demand liability. What is time liability? Time liability is that which we have to pay after a certain period. Of time. Very good. After a certain period of time. That's it. Very good. लॉन्ग टर्म. No, I'm not asking about short-term liability or long-term liability. I was asking about the meaning of time liability. Means if a particular somebody if have deposited certain amount, say like 2 lakh rupees, somebody has deposited in the bank. So whenever they ask whenever they ask you, you will have to pay them. That is demand liability. Whenever they ask, whenever they want to withdraw, that is demand liability. Whenever they will demand, you will have to pay them because it is their money and they want it back at any point of time. You will have to pay them. That is demand. Whenever they demand, you have to give it back to them. Time liability means they can't demand whenever they want. No, they will have to wait up till the maturity date. They will have to wait up till the maturity date. So maybe maturity date is short term 1 year, maybe maturity date is long term 5 years. Are you getting my example?
So I'm not focusing on short term and long term, but I'm focusing on the meaning and the difference between the two. So time liabilities are those liabilities which bank has to pay after a certain period of time. Example, 1 year, 4 year, 5 years, 3 years, after maybe 10 years. Okay, suppose I have invested in fixed deposit of a particular bank, say like ICICI Bank. So that FD has been done for 1 year. Suppose I have started it today. What is today? 26th September 2020. So 25th September 2021, I will receive that amount. Yes, I can withdraw it in between if I need the funds. Of course, if I will be in need, only then I will be withdrawing the funds, right? Otherwise, why? Okay, so first of all, there should be a need. I will be in need, I will withdraw the funds. In between, yes, I can, but I will not get the said amount of interest. Okay, if they are promising me to pay 8% of interest, I'm withdrawing after 6 months. I'm not keeping it for 12 months long. Then for 6 months, I will be getting my interest at half of what was promised by the bank. I will be paid, but half of the interest will be paid by the bank. Why? Because half of the year I have deposited the amount instead of for the whole year. Are you getting the meaning between the two? Okay, so time liabilities means, see, examples are written. Fixed deposits, these are the examples. Fixed deposits, time liability hota hai. Recurring deposit, it is also a time liability. Miscellaneous types of deposits. ओके, मिसलेनियस टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स बहुत होते हैं, जैसे पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं, ठीक है, वो भी आपका टाइम डिपॉजिट होते हैं, ठीक है. कैश सर्टिफिकेट्स, देयर आर सर्टेन कैश सर्टिफिकेट्स if in which you invest, you will have to wait up till the maturity date. Okay, like बैंक के जो bonds होते हैं ना, बैंक के bonds, debentures, cash certificates ऐसे होते हैं ना, उससे हम लोग कह सकते हैं कि वो टाइम लाइबिलिटीज होती हैं. आपने बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया 1 year के लिए, सो यू हैव टू वेट फॉर 1 year नो टू विदड्रॉ दैट अमाउंट. एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल नॉट बी डूइंग इट until you need it very very urgently. Okay, okay, now come to the next point, demand liabilities. What are demand liabilities? Whenever a customer demand, bank has to pay, therefore it is liability on the banks. No, liability is karza on the bank. So yes, it is karza on the bank. It is karza over my head, liability over my head. Because if somebody gives me something and I know I will have to give them back on a certain future date, therefore it becomes my liability. And therefore it has been divided into two parts, time liability and demand liability. What is time? You have already understood. Demand liability is on demand. You have to pay to the customers. Whenever customers want to withdraw, they will withdraw, and nevertheless bank will say that I do not have money. Have you seen any bank saying sorry I don't have money? No, Never. ma'am. वो एक अलग बात है, that is a different matter. If you go to an ATM, like ATM का जो बना हुआ होता है केबिन टाइप, आप ATM मशीन यूज करने गए और ATM मशीन नहीं चल रही है एंड इट सेज इट हैज नो कैश, तो वो एक अलग बात है. ATM मशीन में कैश नहीं है, लेकिन इफ यू गो टू बैंक, स्टे इन आई मीन यू हैव टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू, एंड देन आफ्टर व्हेन योर नंबर कम्स, nobody will say, you no official can say that I don't have money, go back to your home. No, कभी भी बैंक ये नहीं बोलती कि मेरे पास पैसा नहीं है ना, कभी भी नहीं. वो एक अलग बात है कि आप एटीएम में चले गए और एटीएम की कैश खत्म हो गई है. मशीन में कैश खत्म हो जाना एक अलग बात है, बैंक के पास तो कैश है ना. आई बात समझ में? ओके, अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन, नहीं सॉरी, प्राइमरी फंक्शंस में लेंडिंग ऑफ फंक्शंस.
Lending of functions. So what is lending of functions? Lending means granting loan to somebody. So it is a primary function of bank, no? These are the two primary functions that every bank will have to perform, commercial bank. What is that? Receiving deposits and granting loans. Giving somebody a loan. Now that particular loan has been given as with different options. If you can see, it is overdraft. What do you mean by overdraft? Can somebody tell me? What do you mean by that? I know it is a form of loan, but to whom it is मैम given, to whom it is बिजनेसमैन को जो not? मिलता है मैम ओवरड्राफ्ट की करंट अकाउंट होल्डर ओवरड्राफ्ट को मिलता फैसिलिटी। है। हाँ, वेरी गुड। किसी ने बोला ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। किसने बोला ये? बिजनेसमैन को सिर्फ मिलता है मैम ये फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। सूरज, वेरी गुड। ओके, ओके, वेरी गुड। बिजनेसमैन को सिर्फ ये मिलता है। वेरी गुड। Only and only businessman. Therefore, if I would say only those persons who have current account, because current account is handled by only a businessman, no? We are the savers. We will not open current account. We are going to just save in the bank. Whatever money we have in excess, we will save it in the bank. So we cannot say that I have a current bank account. Only those persons will open current bank accounts who are businessmen. Okay. So for doing day-to-day transactions in the business, for the business, they will have to open current account with the bank. So those persons who are having current account with a particular bank will have a privilege to enjoy the facility of bank overdraft. Okay, first of all, the first thing. Second thing, bank overdraft is always short term. Okay, short term means for 1 year, 6 months. Okay, that way. Now, what happens here? It is a type of short term loan which is given in the credit of current account. Now, you can use the money in the current account which is not yours. You can use the money in the current account, but you have to keep it in mind that if that money does not belongs to you, you are not owner of that money. So who is owner of that money? Bank. Bank has बैंक given it to you for using it for certain period of time, maybe for 6 months, maybe for 1 year, but later on you have to keep paying them in installments together with the amount of interest. If you do not pay within the due date, if you do not deposit that amount, of course a penalty will be charged, a fine will be charged in the name of interest. So is it clear? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, so next we have cash credit. What is cash credit? A loan in the form of cash, direct cash. ओके, कैश क्रेडिट कैसे मिलता है? लोन इन द फॉर्म ऑफ कैश। आपने बैंक से कैश में लोन ले लिया, ठीक है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ व्हाट इज इट? इट इज अ टाइप ऑफ लोन। हाउ मैम? सी, आई एम अ कस्टमर ऑफ बैंक, आई एम अ बिग बिजनेसमैन, I have so many bills. I am going to a bank. I'm taking all these bills of rupees 30,000, suppose. I am asking bank to purchase those bills. I want to sell it off. Why? Because these bills have a maturity period of maybe 3 months, maybe some bill has 6 months, maybe some bill has 2 months. So I cannot wait till 2, 3, 4, 5, 6, 7 months because I want money now for my business. I want to purchase raw material. I want to pack my goods. I want to transport my goods. And for all these things, I want cash. My cash is blocked in the form of bills receivables. So what I will do is I will sell it off, sell all the bills to a bank. Bank will purchase and give me cash. They will give me cash, no? They will give me cash, but after deducting a commission, a charge, because they are giving me advance money. The maturity period of a bill has 2 months, 3 months, 4 months, 5 months, and so on. But I am receiving it today.
2 months before, 3 months before, okay, 5 months before. Therefore, it is advance payment to me. So till the maturity date comes and my customer pays to the bank, there is a liability over my head that I've taken advance income from bank. Advance, we cannot say income, but then advance, it is as good as loan given from the, from the side of the bank. ये लोन ही तो है एक तरीके का, क्योंकि आपसे जो बिल खरीदा गया है बैंक ने, तो वो उसकी मैच्योरिटी डेट तो अभी तक आई नहीं है, तो आपको पहले से ही पैसे मिल गए, मतलब इट इज एज गुड एज आपने बिल्स को गिरवी रख दिया और उसके अगेंस्ट में पैसे ले लिए। अब वो बिल्स का बैंक क्या करती है, 3 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद जब मैच्योरिटी डेट आती है, तब वो बैंक जाकर कस्टमर से पैसा वसूल करती है। कौन से कस्टमर से? आपके कस्टमर से, जिसका ये बिल पे नाम होगा ना, मिस्टर सो एंड सो, उनसे जाकर अमाउंट पूरा कलेक्ट करेगी, 30,000 का 30,000। लेकिन उसने 2 महीने पहले आपको कितना दिया था? मे बी 28,000। तो बैंक ने बीच में 2,000 अर्न किया ना, सो दैट 2,000 इज इनकम फॉर द बैंक। उसको आप इनकम बोल सकते हो, उसे आप कमीशन बोल सकते हो, उसे आप फीस कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको सर्विस दी, लोन दिया, तो उसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट कह सकते हैं। Okay, so this was discounting bills of exchange. Next is loans and advances. ये तो clear cut लिखा हुआ है, ये तो clear cut लिखा हुआ है। बैंक लोगों को loans भी देती है, advances भी देती है, ठीक है। Venture capital. What is venture capital? Venture capital is when bank invest in new startups. जो नए नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं ना, छोटे छोटे, जिनको ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो बैंक्स आगे आती हैं, क्योंकि और कोई तो इन्वेस्ट करेगा नहीं, न्यू कंपनी है, रिस्क है, कौन इन्वेस्ट करेगा न्यू कंपनी में? कोई भी नहीं। बहुत कम लोग आते हैं जो न्यू कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, नहीं तो सारे सोचते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में इस्टेब्लिश्ड है, जो ऑलरेडी मार्केट में ऑलरेडी उसकी कंपनी अच्छी चल रही है, सारे लोग तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं ना। मोस्ट ऑफ पीपल गो फॉर ए रेटेड कंपनीज, ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, ओके। तो जो न्यू कंपनीज होती है उसमें तो कोई पैसा डालता ही नहीं है कि मेरा पैसा डूब नहीं जाए, कल कोई कंपनी बंद हो गई तो, नई कंपनी है, मार्केट में चल नहीं पाई, कॉम्पीट नहीं कर पाई, तो इसीलिए बैंक्स आगे आती हैं और उन्हें कहती हैं कि मैं आपको जो फंड दे रही हूँ ना, वो मैं आपके ग्रोथ होने के बाद निकाल दूंगी। ग्रोथ हो जाएगी ना आपकी, आपको ग्रोथ चाहिए, उसके लिए ग्रोथ के लिए पैसा चाहिए, फंड्स चाहिए, कैपिटल चाहिए, आई एम रेडी टू गिव यू, बट इट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ लोन। कैसे? जब आपकी ग्रोथ हो जाएगी ना, तब ये पैसा मैं वापस ले लूंगी। तो कॉमन सेंस से ये लोन टाइप ही तो हो गया, क्योंकि लोन हम लेते हैं तो एक टाइम के बाद बैंक हमसे वापस ले लेती है ना लोन, ऐसे तो नहीं है कि कभी वापस नहीं लेगी, नहीं। तो वेंचर कैपिटल भी ऐसे ही होता है। तो वेंचर कैपिटल में फर्क क्या है? लोन, कैसा लोन है ये वैसा लोन है जो सिर्फ और सिर्फ छोटी छोटी कंपनीज को दिया जाता है। इंडिविजुअल लेवल पे आपको लोन नहीं मिलेगा। आपको एजुकेशनल लोन लेना है तो इंडिविजुअल लोन मिल जाएगा, बट वेंचर कैपिटल ये इंडिविजुअली नहीं मिलता है, ये कंपनीज को मिलता है। वो भी कौन सी कंपनीज? लार्ज कंपनीज, सेटअप कंपनीज, ऑलरेडी जिनकी गुडविल अच्छी है, वो कंपनीज? नो, माय आंसर इज नो। किनको ये न्यू स्टार्टअप कंपनी, न्यू कंपनी को लोन देती है। यस, न्यू कंपनी। वेंचर का मतलब ही होता है न्यू स्टार्टअप। वेंचर का मतलब होता है जो अभी अभी एंटर हुए हैं मार्केट में, अभी अभी न्यू एंटर हुए हैं मार्केट में, उसे कहते हैं वेंचर, ठीक है। चल आगे देखो, गारंटीज मतलब गवर्नमेंट आपको गारंटी देती है ना, किसी ना किसी चीज के लिए अगर आपको गवर्नमेंट गारंटी देती है, गारंटर बन के रुकती है दो पार्टीज के बीच में, तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ, एक्चुअली वो एजेंसी सर्विस में आना चाहिए। यहाँ पे गारंटी मतलब वो कुछ कमीशन वगैरह चार्ज करेगी किसी अमाउंट ऑफ लोन देने पर, कि किसी को आप लोन दो, इट्स माय गारंटी काइंड ऑफ, कि वो पैसा चुकाएंगे, अदरवाइज उनका बैंक अकाउंट तो है ही मेरे बैंक में, ठीक है। इट इज दैट टाइप ऑफ गारंटी। अब आ जाओ सेकेंडरी फंक्शंस पे। अब ये सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं? सेकेंडरी मतलब जो प्राइमरी नहीं होते हैं, वेरी सिंपल, those functions which are not primary
विल बी नोन एज सेकेंडरी फंक्शंस। अच्छा, तो प्राइमरी नहीं होते, प्राइमरी मतलब मेन, जिसके बिना बैंक बैंक नहीं होगी। लेकिन हाँ, सेकेंडरी फंक्शन नहीं भी परफॉर्म करेगी तो चलेगा, बट इट हैज टू परफॉर्म एनी हाउ दोज प्राइमरी फंक्शंस, क्योंकि उसी नींव पे तो बैंक खड़ी है। द मेन फाउंडेशन ऑफ द बैंक इज टू परफॉर्म प्राइमरी फंक्शंस, दीज आर द फाउंडेशन ऑफ द बैंक्स, receiving deposits and granting loans. But secondary function, it is like बैंक ने सोचा एक्स्ट्रा, चलो कमीशन, आजकल देखो जमाना कैसे है, अब हम लोग मतलब एक बिजनेस तो कर ही रहे हैं, फिर सोचते हैं चलो एक साइड इनकम निकल जाएगी, है ना, साइड बिजनेस हो जाएगा मेरा, चलो मैं कॉलेज में तो पढ़ा ही रही हूँ, चलो क्लासेस भी पढ़ा लेती हूँ, है ना। वो अलग बात है कि मैं पढ़ाती नहीं हूँ, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, है ना, तो ट्यूशंस पढ़ाते हैं, क्लासेस पढ़ाते हैं कॉलेज में पढ़ाने के अलावा, तो इट इज साइड इनकम फॉर देम। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? अब आपका ऑलरेडी बिजनेस सेटअप है, आप जॉब करते हो, चलो पार्ट टाइम जॉब करते हो, पार्ट टाइम जॉब कब से कब तक करते हो? दोपहर को 3 बजे से लेकर या 4 बजे से लेकर शाम को 9 o'clock तक जॉब करते हो आप, ठीक है ना, 4 to 9 या 4 to 8, पार्ट टाइम जॉब जिसे कहते हैं। तो आप सुबह में फ्री हो, तो आप सोचते हो चलो मैं अपना बिजनेस ओपन कर लेती हूँ कुछ ट्रायल बेसिस पे कि मेरा बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल पड़ेगा तो जॉब छोड़ देंगे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे थे, बिजनेस में से भी अर्न करते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो जो जो ऐसे होते हैं ना, वो उन्हें कह सकते हैं हम सेकेंडरी फंक्शन। तो बैंक भी यही सोचती है कि चलो साइड इनकम निकल जाएगी हमारी, है ना, तो उसे कहते हैं सेकेंडरी फंक्शन। अच्छा, ये सेकेंडरी फंक्शंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 2, एजेंसी एंड जनरल यूटिलिटी। अब ये एजेंसी मतलब एज एन एजेंट अ बैंक विल एक्ट फॉर यू, बैंक विल एक्ट फॉर यू एज एन एजेंट। कब कब एज एन एजेंट बैंक खड़ी रहेगी आपके लिए? जब आपको रेंट, घर का रेंट, जब आपको इंश्योरेंस, कार का इंश्योरेंस, घर का इंश्योरेंस, ऑफिस का इंश्योरेंस, गुड्स का इंश्योरेंस, घर की चीजों का इंश्योरेंस, वॉशिंग मशीन का इंश्योरेंस, रेफ्रिजरेटर का इंश्योरेंस, प्रीमियम, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है ना आपको, इंश्योरेंस कराया है तो आपको जब ऐसे कुछ एक्सपेंसेस पे करने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, आजकल देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपने बैंक को बोल दिया हर महीने ना मुझे याद नहीं रहता, मैं लेट कर दूंगी, वो इलेक्ट्रिसिटी काट देंगे, मेरे घर पे लाइट चली जाएगी, पावर कट का इशू हो जाएगा, है ना। तो फिर मैंने क्या बोल दिया बैंक को कि आप मेरे लिए भर दिया करो, तो वो मेरे लिए एजेंट बन जाती है बैंक, बैंक बिकम्स माय एजेंट, इट इज माय पेमेंट बट बैंक इज गोइंग टू डू इट। ऑफ कोर्स आपके खुद के अकाउंट में से निकाल के करती, खुद के पैसे में से नहीं करेगी, खुद के पॉकेट से नहीं करती है बैंक, आपके ही अकाउंट में उतना अमाउंट, उतना फंड जनरेट हुआ रहना चाहिए, उतना डिपॉजिट हुआ रहना चाहिए। आपके पास फंड अकाउंट में 20,000 है और इलेक्ट्रिसिटी बिल आया आपका, सब टोटल मिला के, फैक्ट्री का, हाउस का, घर का, और बाकी सब जो भी आपके पास 1-2 घर और है, सबका घर का बिल आया, समझो 30,000, बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, आई नो, ऐसे पकड़ लो 8-9 मंथ्स का बिल है, ठीक है 30,000। तो अब आपके अकाउंट में 20,000 रुपीज है, क्या बैंक 30,000 पे कर पाएगी? नहीं, बैंक आपको इंटीमेट करेगी 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, हफ्ता भर पहले, कि आपके अकाउंट में उतना है ही नहीं, आप थोड़ा बैलेंस मेंटेन करो, क्योंकि आपका मैंने देखा है इतना इतना बिल आता है हमेशा, वो बैंक मेंटेन करती है रिकॉर्ड्स, ठीक है ना। चलो आगे देखो, कलेक्शन ऑफ चेक्स। अब आपकी ना बहुत बड़ी कंपनी है, आपको ना टाइम नहीं है, बिजनेसमैन हो आप बहुत बड़े, आपको टाइम ही नहीं है क्या कि मेरे कस्टमर्स जो मुझे पेमेंट करने वाले हैं 2 मंथ्स के बाद, 3 मंथ्स के बाद, 6 मंथ्स के बाद, वो चेक देने वाले हैं, तो मुझे तो याद ही नहीं रहेगा 2 मंथ, 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2.5 महीने की, 3.5 महीने कि 4.5 महीने पड़े हैं कैश कलेक्ट करने में, ये तो मुझे याद नहीं रहता। तो मैंने बैंक को बोल दिया प्लीज आप मेरे नाम पे चेक्स को कलेक्ट कर लें और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट भी कर लें, ठीक है, इसे कहते हैं कलेक्टिंग ऑफ चेक्स। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज,
आपने ना बैंक को बोल के रखा है जब भी डॉलर बढ़ेगा आप ध्यान देना, बेच देना, तो मेरा प्रॉफिट होगा ना। जब भी डॉलर कम होगा ना रुपये के कंपैरिजन में, तब खरीद लेना। मैं नहीं देखूंगा इस बात को, मैं नहीं बैठ के टीवी ऑन करनी है मैंने और है ना सेंसेक्स चेक करना है कि आज का गोल्ड का प्राइस कितना है, आज का डॉलर रेट कितना है, आज का यूरोस कितना है, आज गोल्ड कितने पे चल रहा है, निफ्टी 50 कितना है। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। आप मेरे लिए डीलिंग कर लो फॉरेन एक्सचेंज में, मतलब डॉलर कितना, यूरोस कितना है आप देख लेना, पर मुझे तो इन्वेस्ट करना है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है देखने का, नॉलेज नहीं है देखने का, जानकारी नहीं है कैसे चेक करते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो यू हैव इन्फॉर्म्ड बैंक कि आप मेरे नाम पे डीलिंग करिए, मेरे अकाउंट में इतना अमाउंट पड़ा है, रुपीस पड़े हैं, उसको डॉलर्स में इन्वेस्ट कर दो। कब? जब आपको सही लगे, मार्केट सही हो। मार्केट तो तब सही होगा ना जब डॉलर्स कम होंगे, ठीक है। मतलब कब डॉलर्स कम हो रहे हैं, कब बढ़ रहे हैं, कब खरीदना है, कब बेचना है, वो आपको डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज से बैंक विल एक्ट एज एन एजेंट टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज फॉर यू, एक्टिंग एज अ ट्रस्टी। अब ट्रस्टी, ट्रस्टी बन के आपके लिए प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होगी, प्रोजेक्ट्स में आपका नाम लगाएगी, है ना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में आपके नाम पे स्पॉन्सरशिप करेगी, अलग अलग जगहों पे। किसी को चैरिटी देनी है, किसी को डोनेशन देना है, कितना डोनेशन दे सकते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स उसकी साइन लगती है, आपकी साइन लगेगी नहीं तो आपने अगर कह दिया कि इतनी चैरिटी क्यों कर ली, तो फिर बैंक क्या करेगी। तो वो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज देख लेते हैं, पेपर डॉक्यूमेंट्स वगैरह का काम देख लेते हैं, फिर आपसे साइन लेकर वो आगे अप्रूव कर लेते हैं कि ठीक है। तो वो एक्टिंग एज एन ट्रस्टी हो गया ना आपके लिए, ठीक है। ये सारे समझ गए एजेंसी सर्विसेज कैसे होते हैं, सबको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। Yes, ma'am. Yes. So next we have general utility services. Now general नाम से पता लग रहा है ये तो जनरल है, यूटिलिटी मतलब जैसे, यूटिलिटी मतलब जो हमेशा यूज में आता है ना डेली लाइफ में, जो मतलब मुझे जो सर्विसेज बैंक से डेली लाइफ में यूज आ सकता है, ठीक है। वो कैसी है चलो देखते हैं। सेफ कस्टडी डिपॉजिट, मेरे घर पे ना बहुत सारी ज्वेलरी पड़ी है, गोल्ड पड़ा है और ऑर्नामेंट्स हैं और घर के पेपर्स हैं, ऑफिस के पेपर्स हैं, एक और घर मैंने साइड में खरीद के रखा है, फ्लैट प्रॉपर्टी खरीद के रखी है, उसके पेपर्स है, लैंड खरीद के रखी हुई है, उसके पेपर्स है, गांव में एक और जमीन खरीदी हुई है, उसके पेपर्स हैं। कहीं ये चोरी नहीं हो जाए, है ना, कहीं मेरी सास को पता नहीं चल जाए मेरे को बहुत ज्वेलरी पड़ी है, गोल्ड पड़ा है ना, तो ये ना हो, इसीलिए हम लोग बैंक से एक फैसिलिटी, एक सर्विस लेते हैं जिसे कहते हैं सेफ कस्टडी डिपॉजिट। अब है ना, सेफ कस्टडी डिपॉजिट, क्या कहते हैं? सेफ कस्टडी डिपॉजिट। सेफ कस्टडी, कस्टडी का मतलब होता है बैंक आपके लिए, आपकी अमानत को बैंक संभाल के रखती है आपकी चीज, संभाल के रखने का काम किसका होता है? Bank का. बैंक का, वेरी गुड। छुपा के रखने का, आपकी सास को पता नहीं लगना चाहिए कि आपके मॉम डैड ने आपको इतना ज्वेलरी दिया, है ना। आई एम साउंडिंग फनी, आई नो, बट एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सो बैंक विल कीप इट हाइडिंग, हाइडिंग, ठीक है। तो मेरे बोलने का मतलब है कि अगर आपको घर पे वो सब इम्पोर्टेंट चीजें घर पे नहीं रखनी है, घर पे कभी देखो अर्थक्वेक आ गया, नुकसान हो गया, साथ सब कुछ नुकसान हो गया, लेकिन वो पेपर्स तो बच गए, जो गोल्ड और ज्वेलरी और पेपर्स जो बैंक के पास रखे हुए थे। आई बात समझ में? पर्टिकुलर एक जगह पे अर्थक्वेक आया, फ्लड हो गया, ठीक है, वैसे फ्लड आता तो पूरा ही तहस नहस हो जाता है, वो एक अलग बात है, बट देखो एक जगह पे सब चीजें रखी हुई होती हैं तो नुकसान भी ज्यादा होता है ना। तो आपने चीजें बैंक को देके रखनी कि आप संभाल के रखें। चोरी हो गई घर पे, तो घर पे चोरी हो जाने से वो चीजें तो चोरी नहीं होंगी ना जो बैंक के पास पड़ी हैं, तो नुकसान तो कम होगा ना, ठीक है ना। चलो आगे देखो, सेफ डिपॉजिट लॉकर फैसिलिटी। अब आपको लॉकर फैसिलिटी भी मिल सकती है कि आप है ना, आप बैंक को बोलो मेरे को ये घर के पेपर्स ये सब, आपने वो ओ माय गॉड मूवी देखी होगी, देखिए ओ माय गॉड, उसमें देखो वो घर के पेपर्स उसकी मॉम ने लॉकर में रखे थे, उसके जाने के बाद
वो चेक करता है लॉकर में, लॉकर खुलवाकर वो एक पेपर निकलता है उसमें से, और उस वो पेपर डॉक्यूमेंट होता है बर्थ सर्टिफिकेट उसका, ठीक है। कौन है, परेश रावल है ना वो, तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट निकलता है, उसमें लिखा हुआ है बायोलॉजिकल उसका फादर और मदर कोई और है, तब उसको पता चलता है कि ये मेरे मॉम डैड नहीं थे। आई बात समझ में? वो लॉकर फैसिलिटी वही तो है जो उस मूवी में वो एक सीन दिखाया है। Yes, ma'am. यस, ट्रांसफर ऑफ मनी, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे पैसों को ट्रांसफर करना है तो बैंक आपको हेल्प करती है। देखो आजकल तो मशीन है, बैंक में आप जाओ, मशीन पड़ी होती है, उस मशीन में सिर्फ आप अकाउंट नंबर, IFSC कोड और जिसको पहुंचाना है उसका नाम, उसका नंबर, जो भी अकाउंट नंबर होगा वो सब डालो, अमाउंट को डालो, और आप क्या करते हो, मशीन को ना वो पैसे खिलाते हैं हम, मतलब मशीन में पैसे डालते हैं, अब वो क्या करती है मशीन, ये अमाउंट वहां तक पहुंचा देती है। अब मशीन थोड़ी ना करती है काम, बैंक करती है। पहले मशीन के थ्रू आपके अकाउंट से पैसा निकालती है, निकाला, ठीक है, निकाल तो दिया, अब पहुंचाएगा कौन, बैंक, किसको, आपकी जहां पे जिसको पैसा पहुंचाना है, कंसर्न्ड पर्सन, जिसको ये अमाउंट पहुंचाना है, उसका आपने अकाउंट नंबर दिया था, IFSC कोड दिया था, ठीक है, तो उस हिसाब से वो नंबर जो अमाउंट है वहां तक पहुंच जाएगा। तो बैंक की तो आपको ये सर्विस दे रही है एक जगह से दूसरी जगह तक पैसे पहुंचाने का। अच्छा, इशू ऑफ ट्रेवलर्स चेक, मेल ट्रांसफर एक्सेट्रा। अब आपको पता है आजकल जब हम घूमने जाते हैं, जैसे ट्रैवल कर रही हूँ मैं, समझो एग्जाम्पल मैं शिमला घूमने जा रही हूँ, अब है ना, मैं अगर कैश कैरी करूंगी ना तो मुझे डर है चोरी तो नहीं हो जाएगी ट्रैवलिंग के टाइम पे, कैश पता नहीं गुम नहीं हो जाए, चोरी नहीं हो जाए, या लॉस्ट नहीं हो जाए, ठीक है। तो ये सब डर की वजह से ना आजकल लोग कैश नहीं कैरी करते, चेक कैरी करते हैं। कौन सा चेक, ट्रैवलर्स चेक, मतलब अगर मैं घूमने जा रही हूँ, सपोज मुझे कैब में पैसा भरना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, एयरपोर्ट से मैं अपने होटल जा रही हूँ, तो मुझे ना पेमेंट करनी है कैब वाले को, तो मैं चेक दे दिया करूंगी, कितने का चेक, जितने का मैंने बना दिया, समझो 1000 रुपीज का चेक बना दिया, साइन कर दी, वो चेक मैंने उसको दे देना है, और वो चेक जाके अपनी बैंक पे डिपॉजिट कर देगा, उसको एनकैश होके मिल जाएंगे। आई बात समझ में, ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये भी तो बैंक ने आपको सर्विस दी ना, तो इट इज जनरल यूटिलिटी सर्विस। ये तो बिजनेसमैन को लगता ही रहता है, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, जो ट्रैवल करते रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी आउट ऑफ इंडिया, कभी मुंबई, कभी गुजरात, ठीक है, जो बहुत ट्रैवल करते रहते हैं, उनके लिए तो ये ट्रैवलर्स चेक मतलब ऐसे समझो रोज का, एवरी डे का होता है, उनको पूरा बुक ही मिल जाता है चेक का, ट्रैवलर्स चेक करके। एक्टिंग एज अ रेफरी, दो जनों के बीच में अगर आपको ना किसी को रेफरेंस देना है, समझो आपको किसी को रेफरेंस देना है, तो आप बैंक के नाम पे रेफरेंस देकर अपना बिजनेस उनके साथ कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको, आपको कोई जानता नहीं है तो आप, वो बंदा क्या बोलेगा, रेफरेंस तो दो कि कौन आपको जानता है, और वो नोन होना चाहिए। अभी समझो मैं कहूंगी बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको जानती है ना, आप कस्टमर हो बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो मुझे विश्वास आ जाएगा कि हाँ ये बंदे के पास इतना फाइनेंशियल स्टेटस है, इस बंदे का इतना फाइनेंशियल स्टेटस है, और ये इतना अर्न करता है, और ये इसका अकाउंट इधर इधर है, और ये बैंक ऑफ बड़ौदा तो बहुत नोन बैंक है। आई बात समझ में? तो बैंक विल बिकम रेफरी फॉर यू, ठीक है, लेकिन उसके लिए ये सब चीजों के लिए बैंक कमीशन चार्ज करती है, फ्री में कोई भी सर्विस नहीं देती है बैंक, चाहे वो एजेंसी सर्विसेज हो, चाहे वो जनरल यूटिलिटी सर्विसेज हो, ठीक है। मर्चेंट बैंकिंग, आपके लिए बैंक है ना, समझो आपको इंटरनेशनल फाइनेंस, आपका बिजनेस है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बाहर खरीदते हो, बाहर से बेचते हो, बाहर से खरीदते हो, आपको इंटरनेशनल फाइनेंस, आपको इंटरनेशनल ट्रेड करना है, तो उसमें आपको मदद करती है बैंक, ऐसी सर्विसेज को बोलते हैं मर्चेंट बैंकिंग। बहुत सारी मर्चेंट बैंकिंग में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, बट अभी के लिए आप इतना समझिए। टेलर सिस्टम, मतलब आप टेलर मतलब टेलीफोन करके, या आपका जो भी, समझो आपको कस्टमर को कुछ पहुंचाना है, मैसेज पहुंचाना है, तो वो बैंक करेगी, ठीक है, कि आपका अमाउंट 2 दिन में ड्यू होने वाला है, पे कर दीजिए नहीं तो इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा वाला टेलर सिस्टम कहते हैं उसे। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म है ये, ऑटोमेटिक, हेलो, एम आई ऑडिबल?
Yes, ma'am. So automatic teller machine, it is ATM. ATM. Yes, ATM तो आपको पता ही क्या होता है, ठीक है। मशीन विच मतलब आपको कभी भी पैसा चाहिए तो मशीन से विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड, ये भी आपको पता है क्या होते हैं। आपके कैश, आपके अकाउंट में 20,000 रुपए पड़े हैं पर आपके नहीं है, बैंक आपको दे रही है क्रेडिट कार्ड के फॉर्म में। तो ये फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, घर की चीजें खरीद सकते हैं, कोई कैपिटल गुड्स खरीद सकते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है, ठीक है, अलग अलग लिमिट्स होती है अलग अलग लोगों के लिए, वो आपको पता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब क्या होते हैं। डेबिट कार्ड मतलब जो मेरा पैसा है उतना ही मैं यूज कर सकती हूँ, एक्स्ट्रा फंड्स नहीं यूज कर सकती हूँ अकाउंट में से, क्योंकि है ही नहीं। क्रेडिट कार्ड में आपके पास अकाउंट में 20,000 है, आप 30,000 भी यूज कर सकते हो, 40,000 भी यूज कर सकते हो। तो जो ऊपर का अमाउंट है ना उससे क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट मतलब लोन, जो बैंक आपको कार्ड के फॉर्म में देती है, वो फिजिकल कार्ड नहीं होता, प्लास्टिक कार्ड, उसके फॉर्म में। गिफ्ट चेक्स, आपको किसी को ना गिफ्ट में अमाउंट देना है, मतलब जैसे डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गई, तो उन्हें कहते हैं गिफ्ट चेक्स। समझो आपको ना चेक में लिख कर देना है 2 लाख रुपए डोनेट कर दिए मैंने, तो 2 लाख रुपए कोई कैश थोड़ी देता है, कोई कैश देता है 2 लाख रुपए? नहीं, वो चेक बनाकर दे देगा ना, उसे कहते हैं गिफ्ट चेक्स। एग्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी, आपके लिए वो किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कितना इन्वेस्ट करूं, कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं, तो वो आपके लिए वो एग्जीक्यूट करेगा, ढूंढेगा, रिसर्च करेगा और इन्वेस्ट करेगा। ट्रस्टी मैंने आपको पहले ही बताया। मिसलेनियस मतलब और भी, इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे डेबिट कार्ड नहीं लिखा हुआ है, वो भी तो बैंक देती है आपको सर्विस, बैंक देती है ना आपको ये सर्विस, उसे ही तो कहते हैं जनरल यूटिलिटी सर्विस। Yes, ma'am. तो कुछ और नहीं भी लिखी हुई है, जो आपका होमवर्क है आपने सर्च करनी है, जो यहाँ नहीं लिखी हुई है, उसे कहते हैं मिसलेनियस। Okay, ma'am. यस, यू हैव टू सर्च इट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगी आपसे। ओके विथ एवरीबॉडी? Okay, ma'am. Okay, ma'am. So we are done with it and our time is also finished. So I hope you are also understanding everything. You don't have any doubts. If you have, you can clear it with me. I have a doubt. Yes. मैम एक डाउट है, हाँ जी बोलो बेटा। मिसलेरियस 12th हाँ वही तो मैंने बोला, मिसलेनियस मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, जो ये सब सर्विसेज के अलावा भी बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज देती है। मिसलेनियस मतलब एक्स्ट्रा सर्विसेज। ओके, थैंक यू मैम। हाँ जी, मिसलेनियस मतलब एक्स्ट्रा, इसके अलावा जो ऊपर लिखी हुई है ना, उनके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज बैंक आपको देती है, वो कह रही हूँ मैं, ठीक है ना। ओके मैम, थैंक यू। यस, ठीक है, ओके। सो वी विल, शुड आई कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर? हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस कर लिया कमर्शियल बैंक के फंक्शंस को, सो प्लीज चेक आउट और रिवाइज इट and please thoroughly revise it, and if you have any doubt let me know in the next lecture. I will definitely clear your doubts. Okay, see you in the next lecture. Enjoy Thank you, ma'am. learning. Bye. Bye everybody. I should be leaving the meeting, right? Wait, wait, I will leave the meeting. You all have to be in the room, okay? Another teacher will join. Ma'am. खुशबू, हाँ हाँ बोलो बोलो। नहीं, लेक्चर नहीं, 1 o'clock का है अभी 11 का लेक्चर है, क्योंकि क्यूएम का बाद में होने वाला है। अच्छा ऐसे है, तो मैं एंड हाँ ही कर मैम। दूं? हाँ एंड कर दो Yes, मैम। ma'am. अच्छा ठीक है, ओके ओके डियर, चलो बाय एवरीबॉडी। बाय मैम। मैम